A very sweet namaste to all. This is our channel Tiny Jeans and I cordially welcome you all. As you can see, today we will practice some important questions of our interesting topic Kingdom Protesta. So let's go. Before going forward, I want to make sure that I will give you 10 seconds to read the question and to solve it. You have to answer all the questions within 10 seconds. Okay, so let's start. Which among these are primitive relative of animals? Diatom, slime mold, Gunailox, Protozoa. So your answer is Protozoa. हमने पढ़ा है Protozoa जो है वो primitive relative है animals की. Why? Because Protozoa are heterotrophs and animals are also heterotrophs. That's why Protozoa जो है वो primitive relative है. So your next question is golden algae belongs to dinoflagellate, chrysophytes, plantae and cyanophytes. So your answer is chrysophytes. Golden algae जिसे हम बोलते हैं desmites, diatom and desmites belong to chrysophytes. That's why the answer is chrysophytes. Golden algae belongs to chrysophytes. The next question is protists used for filtration of syrups and oils belong to slime molds, euglenoids, dinoflagellate and chrysophytes. So your answer is chrysophytes. वो प्रोटिस्ट जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स में यूज होते हैं वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? अच्छा, वो होते कौन से हैं? वो डायटम्स होते हैं. और डायटम्स किस में बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट्स में. डायटम की जो वॉल होती है, सेल वॉल, उसमें सिलिका होता है. दैट्स वाई दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल और वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होकर डायटमीशियस अर्थ बनाती है विच इज ग्रिटी इन नेचर. दैट्स वाई इट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स. Your next question is Euglena is considered as plant because of presence of chloroplast in cell wall, stems and leaves, roots and shoots, and the last option chlorophyll. Your answer is chlorophyll. यूग्लिना के पास ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो उसे प्लांट के जैसा बनाती है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता यूग्लिना के पास. सेल वॉल तो होती ही नहीं है, पेलिकल होती है. स्टेम्स एंड लीव्स भी नहीं होती हैं, रूट्स एंड शूट्स भी नहीं, बट दे हैव क्लोरोफिल like the higher plants which make them photosynthetic in presence of light. That's why they are considered as plant. Next question is Trypanosoma belongs to Sarcodina, flagellates, Coeleda and Sporozoa. So your answer is flagellates. Trypanosoma जो है flagellates को belong करते हैं. They are protozoa which have flagella. That's why they belong to flagellates. And Trypanosoma cause sleeping sickness. The next question is select the wrong statement. The wall of diatoms are easily destructible. Diatomaceous earth is formed by cell wall of diatoms. Diatoms are chief producer of oceans. Diatoms are microscopic and float passively in water. So your answer is A. The walls of diatoms are easily destructible. ऐसा नहीं है diatoms की wall के पास सिलिका होता है. That's why they are indestructible. Let's check all other points. Diatomaceous earth is formed by cell wall of diatoms. Point ठीक है. Diatoms are chief producer of ocean. ये वाली बात तो बिल्कुल सही है. Diatoms are microscopic and floats passively in water. That's why they are plankton. ये भी सही है. So your option is A. Next question is this. Which of the following statement is correct? Slime molds are saprophytic in nutrition. Under unfavorable conditions, slime forms plasmodium. Slime molds lack true walls. Spores are dispersed by action of flies and mosquito. यहाँ पर 10 सेकेंड से ज़्यादा लगे हैं, बट कोई नहीं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. So your answer is slime molds are saprophytic in nutrition. Let's check all the points. First point बोल रहा है slime molds जो है वो nutrition में saprophytic है. They depend on dead and decaying matter. ये बात सही है. नेक्स्ट पॉइंट है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम फॉर्म्स प्लाज्मोडियम. ये पॉइंट गलत है. फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, अनफेवरेबल में प्लाज्मोडियम के ऊपर शूटिंग बॉडीज आती है जिनमें स्पोर होते हैं. स्लाइम मोल्ड्स लैक ट्रू वॉल्स. ये बात गलत है. स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर होते हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होती है. इसका मतलब स्लाइम मोल्ड्स के पास भी ट्रू वॉल होती होगी.
नेक्स्ट है स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एक्शन ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो। स्पोर्स जो होते हैं वो फ्लाइज और मॉस्किटो से नहीं बल्कि वाटर करंट से डिस्पर्स होते हैं। सो योर आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. These are some statement and reason. Statement: euglenoids are flexible in nature, and reason: euglenoids have lipid-rich layer called pellicle which makes them flexible. तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है. तो इसमें आपका आंसर होगा बी. स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सही बात है, यूग्लिनोइड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ पेलिकल. बट वो पेलिकल प्रोटीन की होती है, लिपिड की नहीं होती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the statements are correct except euglenoids are found in running fresh water. Gonailox cause red tide which kills many marine animals. Marine amoeboids have silica on their surface. Sporozoan have an infectious spore-like stage. So your answer is A. इसने बोला है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब सारी स्टेटमेंट सही है सिवाय कौन से स्टेटमेंट के. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है. यूग्लिनोइड्स आर फाउंड इन रनिंग फ्रेश वाटर. रनिंग नहीं, स्टेगनेंट, वो रुके हुए पानी में मिलती है. गुनाइलॉक्स कॉज रेड टाइड, ये सही बात है, विच किल्स मैनी मराइन एनिमल्स. मरीन अमीबॉइड हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस, ये भी ठीक है. स्पोरोजोन हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज. आपको इनका आंसर देने के लिए एनसीईआरटी का हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए. सो प्लीज 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 फोकस ऑन योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो ग्रंथ है, उसे घोट के पी जाओ. Dinoflagellate have two flagella, one short, one long. Diatoms left behind large amount of cell wall deposit that accumulates billions of years and form diatomaceous earth. Paramecium are aquatic, actively moving organism because of thousands of flagella. The disease, which has staggering effect on human population, is caused by notorious Plasmodium. देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ब्रांड न्यू है, मैंने अपने हाथ से खुद से बनाए हैं, ये कहीं से भी लिए हुए नहीं है. सो प्लीज फोकस ऑन दीज क्वेश्चन. इन क्वेश्चन में एनसीईआरटी की एक एक लाइन मिल जाएगी आपको. अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज फोकस. सो योर आंसर इज, इसमें पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन इनमें से गलत है. सो फर्स्ट ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट. ये बात सही है, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं. वन इज ट्रांसवर्स एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडिनल. नेक्स्ट है डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट दैट एक्यूमुलेट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड फॉर्म डायटोमिशियस अर्थ. ये वाली बात बिल्कुल बिल्कुल सही है. नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीशियम आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला नहीं, यहाँ पे सीलिया होगा. पैरामीशियम इज सीलिएटेड, दैट्स व्हाई इट शुड हैव सीलिया. नेक्स्ट है द डिसीज विच हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय नोटोरियस प्लाज्मोडियम. आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी सेम लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है. एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी के टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी. सो यहाँ पर जो गलत पॉइंट है वो है ए, डायनोफ्लैजिलेट हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये गलत है. एंड थर्ड वन, पैरामीशियम्स आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ थाउजेंड ऑफ फ्लैजिला, यहाँ पर सीलिया होगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी बोथ. So that's all. Your questions are finished but not the topic. We will learn fungi in the very next video. So stay with me, stay tuned, stay happy. Thank you very much. पढ़ते रहिए. All the very best. Bye.